Anyway, so next question says harassment as a female dentist. एक सेकंड पंखा स्लो कर दूं मैं, डिस्टॉर्शन आएगी. बाय द वे दीज आर खुर्शीद फैंस, एसी इन्वर्टर वाले, 30 वॉट पे चलते हैं, बिजली बहुत कम आती है और रिमोट के साथ आता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. एनीवे, Assalamu alaikum Junaid bhai, hope you're well. I'm writing this email with a heavy heart and I would deeply appreciate your guidance on something I can't share with anyone around me right now. I'm a practicing dentist based in Lahore. I've worked hard to build my clinic over the last 5 years and have always tried to maintain a strictly professional boundary with every patient. Unfortunately, a few months ago, a male patient visited for a routine dental consultation. He was mildly inappropriate even during that visit, lingering longer than needed, asking personal questions, but I brushed it off as awkwardness and focused on doing my job. Since then, however, he has found me on Instagram and Facebook and started sending extremely inappropriate and vulgar messages, which I have attached below for reference. I tried ignoring him, even blocking him once, but he keeps making new accounts or reappearing through different means. The reason I haven't taken formal action is because of the complexity of my situation. I recently got married into a conservative family. My husband is supportive, but his family has always been uncomfortable with the idea of me working, especially in a field where I interact with male patients. If they get to know anything about this harassment, their reaction won't be to stand by me. Instead, they'll most likely ask me to shut down my clinic entirely to avoid such situations. So sad. This practice is not my job, it's my identity, my independence. I worked through financial and emotional struggles to get here, but now this one disgusting man has shaken my sense of safety so badly that I've started canceling appointments with male patients altogether. For the past week, I haven't had a single male patient in my clinic, not because I changed my policy, but because I just don't feel safe anymore. I feel like I'm drowning. I haven't slept properly in days, and even every time my phone buzzes, I freeze in fear. I know what's happening is wrong, but I also know the reality of our society. Women are told to adjust, to stay quiet, to quit, and to avoid drama. I'm reaching out to you, Junaid Bhai, not just because I'm a long-time follower who respects your voice, but because I've seen you speak up about social issues, women's rights, and mental health. What can I do in this situation without jeopardizing my career and peace? How do women like me protect ourselves when even our own support systems might blame us? Please keep my identity anonymous. I just needed to speak to someone who might help others hear this too. Jazakallah for taking time to read this. May Allah protect all women from this kind of filth and give us the strength to stand our ground. A distressed doctor. दिस इज़ वेरी सैड. जैसे कि आपने सुना, एक डेंटिस्ट हैं, इनका ताल्लुक गालिबन लाहौर से है और एक क्लिनिक में एक मेल पेशेंट आया और फिर इन प्रोफेशंस जहाँ पे प्रॉक्सिमिटी बड़ी कम होती है ना, अब जैसे ज़ाहिर आपने प्रोसीजर फेस पे करना है, सो इट्स लाइक वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो उसके मर्द हज़ार समझते हैं कि अच्छा ये यहाँ तक आ गई है तो यहाँ भी आ जाएगी. मतलब लाइक क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना कि वो डॉक्टर है, वो रुतबा, वो जो आपको रिस्पेक्ट देनी है एक टीचर को, एक डॉक्टर को, या फिर एक फ़्लाइट अटेंडेंट को. हम समझते हैं ये तो नौकर है और अगर ये हमसे हंस के बात कर रही है तो उसका मतलब कुछ और है. आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिशियन. तो उनका भी लाइक शी इज़ इन हर लेट 40s, शी हैज़ किड्स टॉलर देन आई एम. हाउएवर दैट डजंट स्टॉप एनीवन. तो फिर वो एक साहब, उन्होंने ही बताया था कि वो आए एंड while she was conducting procedure, he just held her hand कि oh I'm in pain so I need some support. She's like what the fuck. And then फिर वही चीज़ के inappropriate messages करना, बगैर अपॉइंटमेंट के क्लिनिक पहुंच जाना, और एक बार तो आके सीधा कमरे में ही आके बैठ गए, सीधा अंदर ही आके बैठ गए, और वो रिसेप्शनिस्ट ने रोका भी तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है मैं अंदर वेट कर लेता हूँ. सो व्हेन शी फाउंड आउट कि ही इज़ देयर, सो शी कॉल्ड इन हर सिग्निफिकेंट अदर और बोला कि आ जाए. तो फिर वहाँ गए तो उन्होंने बड़े स्टर्न होके बोला कि आप बाहर वेट करें, बाय द वे ये जो हैं ये मेरे वो हैं. तो वहाँ आके वो थोड़ा सा यूँ शेकअप हो गया. अब बात ये है कि यार ये इतनी सी छोटी सी चीज़ है, उसके लिए शौहर को बोलें ऑफिस छोड़ इधर आ मेरे क्लिनिक में बैठ, इसको ज़रा धमकी लगानी है या इसको बस सामने कराना है. यार मतलब दिस इज़ सो सैड. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर समबडी वंस ईमेल्ड मी बहुत सालों पहले. वो यही था कि शी वॉज टेकिंग अ ट्रेन फ्रॉम पिंडी टू समवेयर इन पंजाब, और वो जो टिकट चेकर था तो वो पीछे पड़ गया. उसने देखा अच्छा लड़की अकेली ट्रैवल कर रही है तो टिकट चेक करके गया, फिर आके बैठ गया फलाना ढिमकाना, और फिर वो समहाउ उसने नंबर भी निकलवा लिया, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने अगर खुद बुकिंग की होगी फॉर्म भर के, आई डोंट नो द प्रोसीजर, हैवंट बीन ऑन अ ट्रेन इन अ व्हाइल, तो वो फ़ोन नंबर निकाल लिया और सब कुछ कर लिया. तो उन्होंने उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो व्हाट शी डिड वाज कि उन्होंने सिटीजन्स पोर्टल पे शिकायत की. 2 हफ्ते के अंदर वो बंदा
अच्छा, बाय द वे शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्रोफेशन एज योर सेल्फ। तो उनके क्लिनिक के बाहर बैठा था, पता नहीं किस तरह वो ढूंढ ढांड के वहाँ तक पहुँच गया, और माफिया कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी नौकरी चली जाएगी, एंड शी डिड। तो उसका फिर ट्रांसफ़र ही हुआ, पता नहीं कहाँ, कोयटा के भी नवाही इलाकों में, वो दूर दराज जाके फेंका, कह रहे मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये है वो है, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। बट शी इज़ लाइक कि यू शुड हैव थॉट दिस थ्रू। बात यही है कि ये जो हम कहते हैं ना, लड़कियों को अवॉइड करो, सह लो, घर बैठ जाओ, अरे भाई पूरी ज़िंदगी आपको एक मेहनत की है आपके पेरेंट्स ने, या आपने ख़ुद की है, आपने तालीम हासिल की है, इतने वाइवा दिए हैं, इतने प्रैक्टिकल्स किए हैं, और वो सब एक तरफ, और एक छिछोरा आदमी विच कांट कंट्रोल हिज लस्ट, और वो वैसे बड़ा फेसबुक पे बनता होगा मुस्लिम, लेकिन यहाँ आके ये हरकतें, तो उसकी वजह से आपकी वो सारी मेहनत इतने सालों की डब्बे में डाल के पैक कर दो। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। और ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि वो कहते हैं जी बाहर मर्द छेड़, मर्द बताते हैं कि भाई वो बाहर निकलोगी तो छेड़ेंगे, तो भाई खुद सीधा हो जाना यार। लेकिन नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग। क्या करें यार, सीधा सीधा यार, ये हरासमेंट का केस है। अब अच्छा, इन्होंने मुझे वो भी भेजा है एक स्क्रीनशॉट, मैं ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ, मैं फिर पूछूंगा प्रोडक्शन से कि क्या इसको हम ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं। भाई पता ही नहीं है ना, कल को पी का एक्ट आप भी लगा दे कि जी मेरी आइडेंटिटी कैसे रिवील कर दी और फलाना ढिमकाना, यहाँ तो उल्टा नेले का देला ही पड़ जाता है। लेट मी जस्ट सी, ये कहाँ ईमेल है। अच्छा जी, इनका नाम एक मशहूर सिंगर से मिलता जुलता है। तो पूछ रहे हैं अपनी डेंटिस्ट से कि सेक्स टाइमिंग ज़्यादा है कम करनी है। अच्छा, वो अपना तारुफ करा रहे हैं इस तरह, एंड ये डेंटिस्ट को कर रहे हैं। वो कह रही हैं आई एम नॉट योर यार और अ यूरोलॉजिस्ट। फिर कह रहे हैं साइज़ 8 इंच का है, मुझे नहीं ज़्यादा करना संभालना मुश्किल है। तो ये हाल है। बल्कि मेरे पास इनका नाम तो है, तो मैं ज़रा इनका फेसबुक प्रोफाइल देख लेता हूँ, शेयर नहीं करूँगा स्क्रीन पे, वैसे तो नेम एंड शेम करना चाहिए, बट अच्छा ये नाम भी एक सिंगर से मिलता जुलता है ना, तो मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो सिंगर के ही सारे पेजेस खुल रहे हैं। अब देखें, ऐसे कमीनों की वजह से ना लड़की, हाँ ये रहा, मिल गया। अच्छा, वो लॉक प्रोफाइल है तो तस्वीर खुल नहीं रही, मैं तो ज़रा इसको जूम कर लूँ, शक्ल से ही हरामी लग रहा है, और लिव्स इन इस्लामाबाद लिखा हुआ है। अच्छा, कोई भी पोस्ट नहीं है पेज पे, सो इट्स लाइक, इट सीम्स लाइक अ न्यू प्रोफाइल। नहीं, 2019 का बना हुआ है प्रोफाइल। अच्छा लॉक प्रोफाइल है तो वो कवर फोटो खुल नहीं रहा, मगर एक सेकंड ना, मैं फ़ोन पे देखता हूँ। ये कोई शेर लिखा हुआ है, इस्लामी कार्ड, ऐसे ही लोग होते हैं। देखिए, बगैर ही बोल दिया था कि ये ऑनलाइन कुछ और बनते हैं और डीएम में ये कुछ और होते हैं। सो मैं बुरा भी क्यों कहूँ किसी को, क्या पता अल्लाह को मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो। ये इन साहब की कवर फोटो है, ठीक है। क्या पता अल्लाह को मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो, ये उनके सामने ये है, और डीएम में ये कह रहे हैं कि भाई 8 इंच का है, उसको छोटा करना है और टाइमिंग भी ज़्यादा है और उसको भी कम करनी है, वो भी अपनी डेंटिस्ट को जिसके पास ये इलाज कराने गए। थर्ड क्लास आवाम है हमारी, थर्ड क्लास। सो आपके पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे मौजूद हैं। आई वुड इनकरेज कि आप एक दिन खुद ही साइबर क्राइम के दफ्तर चली जाएं और उनको ये दिखा दें, और चूंकि वो आपके पेशेंट रहे हैं, आपके पास आई एम श्योर जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है जब वो आते रहे हैं वो भी होगी सबूत के तौर पे। कल को बंदा मुकर सकता है ना, मैं तो कभी इनके क्लिनिक ही नहीं गया, तो जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें लेके सीसीटीवी फुटेज की डेट और टाइम के साथ स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छी सी फाइल बनाएं और लाहौर साइबर क्राइम के दफ्तर चली जाएं। ऑनलाइन मत कीजिएगा, पता नहीं ऑनलाइन वो कितना एक्टिव है। वहाँ जाएँ, सुबह 9 बजे जाके पहुँच जाएँ और उनको बोलें भाई ये मामला है। कोशिश करें अपने हस्बैंड को बता दें और उनको ये नॉलेज में डालें कि भाई ये मैं परस्यू कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑन। हाउएवर ही हैज़ टू टेक इट इनटू कॉन्फिडेंस कि आप आपस में मिलकर इसको सॉल्व करें। घर तक बात आएगी तो आपको बिठाने वाली बात है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग एडवाइजेबल। हाउएवर मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप अकेले इसको परस्यू करें और फिर कल को कुछ और हो के जी अदालत पेशी फलाना ढिमकाना ये वो, तो फिर तब जाके आप हस्बैंड को बताएंगी तो वो शायद माइंड करेंगे कि इतना कुछ चल रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उनको कॉन्फिडेंस में ले लें और बोलने से दिस इज़ माई जॉब बट दिस इज़ समथिंग नॉट इन माई कंट्रोल, हाउएवर आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, कि ये भी सबक सीखे और आइंदा किसी की हिम्मत ना हो किसी और को तंग करने की। क्योंकि अगर ये आज आपके पास डेंटिस्ट के पास आया है तो कल को ये एस्थेटिक्स के क्लिनिक भी जाएगा, कल को किसी पॉश किस्म के बार्बर सलोन में भी जाएगा जहाँ लड़कियां काम करती हैं, उनको भी तंग करेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा, और फिर वही कवर फोटो में कुछ और, डीएम में कुछ और। आप जितना भी फेसबुक वगैरह पे देखें, किसी भी रैंडम पेज पे जाएं, जो एक्ट्रेसेस को गालियां दे रहे होते हैं अकाउंट, जो गंदी गंदी गालियां सियासतदानों को लिख रहे होते हैं, आप सिर्फ क्लिक करें, वो आप
देख लेंगे उनका मजहबी प्रचार पूरा दिख रहा होगा वहाँ पे। समझ नहीं आता है क्या सीखते हैं इन चीज़ों से। सो आपके पास सारे इनके टाइम स्टैम्प, स्क्रीन शॉट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनफैक्ट एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लें, क्योंकि ज़रा ये भी होता है ना कि ये तो एआई से बनी हुई है, तो आप पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, फेसबुक पे जाएं, इनके प्रोफाइल पे क्लिक करें, इनके डीएम पे क्लिक करें, ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, ताकि वीडियो एविडेंस भी हो के देखें ये एआई से नहीं बनाया हुआ, ये वीडियो से बना हुआ है। क्योंकि ये कल को अकाउंट बंद कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, राइट? सो डू दैट। और वही वाली बात है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, तो इसलिए इतना तूफान है बदतमीज़ी का। इसी वजह से लोगों की हिम्मत बढ़ती है, इसलिए बिकॉज वो शीशे के पीछे है। वो लुइस सीके का एक जोक है कि गाड़ी में अगर किसी ने आपको कट किया है तो एक दूसरे को गाली देते हैं। वाई? बिकॉज देर इज़ अ ग्लास इन बिटवीन। लेकिन ये अगर आप लिफ्ट में और कोई आपके पैर पे चढ़ जाए, यू डोंट गो एज एग्रेसिव एज यू आर इन द कार, बिकॉज कार में आपको पता है गाड़ी आप भगा भी सकते हो, या अगर ट्रैफिक में भी है तो अगला आके खोल नहीं सकता अनलेस कि उसको तोड़ दे शीशे को, राइट? तो वहाँ पे आप फुल एग्रेसिव होते हैं बिकॉज देयर इज़ अ ग्लास इन बिटवीन। सिमिलरली ये जो हमारे अवाम साउथ एशिया की जो इस तरह की फिल्थ फैलाती है, वही देखते हैं कि भाई बीच में तो एक ग्लास है, एक स्क्रीन है, प्रोटेक्टर है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, वो पता नहीं कहाँ बैठी है, तो कौन ही आएगा करने। लेकिन इट हैज़ टू बी डन। मैं तो सीधा सीधा FIO कहता हूँ, ये तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, भाई जिस तरह ISPR कंटेंट बनाता है, आपका भी एक डिवीजन आई एम श्योर होगा PR का, तो आप कुछ फंड से ड्रामे बनाएं, बल्कि रियल लाइफ ये केसेस बनाएं, इनको री इनैक्टमेंट करें, और घर घर जाके, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो जो कॉप्स शो आता था ना एक ज़माने में स्टार प्लस पे, स्टार प्लस जब हिंदी नहीं हुआ था, जब अंग्रेजी था स्टार प्लस, OG टाइम्स, तो वो यही था ना, रियल लाइफ केसेस, पुलिस चेज होती थी और वो जाके कैमरा लेके घर में, तो यही कैमरा लेके इनके घरों में घुसो, इनके बीवी बच्चों को, इनके माँ बहनों को, उनको दिखाएं ये स्क्रीनशॉट्स कि देखिए ये आपकी औलाद है, ये आपके सामने ही कुछ भी बनता होगा, हाजी सनाउल्लाह, ये इसकी औकात है, और ये इस तरह लोगों को तंग करते हैं। आई स्वेयर टू गॉड, इतना ये, क्योंकि जब पतोकी में भी छापा पड़ रहा होगा, वजीरिस्तान में भी पड़ रहा होगा, कराची के भी अंदरून में भी पड़ रहा होगा ना छापा, तो लोग फिर डर जाएंगे, यार यू नेवर नो, कहीं से पहुंच ना जाए। बट कोई डराने का मैकेनिज्म ही नहीं है, लोग डरते ही नहीं है, कुछ भी करने से डरते ही नहीं है। वार्डन के सामने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, एटलीस्ट इन कराची। सो बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, लोगों की हिम्मत भरपूर है, और वो बस कहते हैं हम कुछ भी करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। इट्स सैड। मगर किसी एक गलीज इंसान जो कि मैं क्या क्या बोलूँ यार, गालियाँ देने को दिल चाह रहा है, आई डोंट वांट टू। तो ऐसे लोगों की वजह से अपनी डिग्री ज़ाया ना करें और अपना काम ख़राब ना करें। और जो लोग सुन रहे हैं अपने घर वालों को भी इस मामले में एजुकेट करें कि भाई लड़की को बिठाना इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट इज़ एम्पावरिंग दैट बिहेवियर मोर। फिर आप अगली नस्ल के लिए भी यही प्रॉब्लम्स छोड़ के जा रहे हैं। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान अगर आज इस हालत में, तो वी नीड टू क्वेश्चन आवर पेरेंट्स कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे उस ज़माने में तो वीगो भी नहीं लॉन्च हुई थी। तो 10 चीज़ें हो सकती ना, तो आप इन चीज़ों के लिए खड़े होते, सिविल राइट्स के लिए खड़े होते, या फलाना ढिमकाना जो भी है, ये सब यहाँ इस नहज तक पहुँचा कैसे? किससे तो सुनाते हैं हमारे घर वाले। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे अब्बू तो हमेशा बोलते जी बंदर रोड जो है वो पानी से धुलती थी, तो जब धुलना बंद हुई तो क्यों नहीं गए KMC के दफ्तर में? आज कचराची बन गया कराची। तो भाई यू नीड टू स्टैंड अप देयर एंड देन, निप इट इन द बड। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को घर ना बिठाएं, ये सोल्यूशन है ही नहीं। ये तो उनको और एम्पावर कर रहा है, 4 लोगों को और बताएगा। ये देख मैंने कैसा क्लिनिक बंद करवाया, और वो भी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो कि सुपर मिसोजिनिस्ट है, जो चाहते ही नहीं है कि, एंड प्लीज़ डू नॉट एवर गिव अप योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर एनीवन। यही आपकी सेविंग ग्रेस है, और आपने ज़िंदगी भर तालीम हासिल इसलिए ही की थी कि आपके पास अपनी एक आइडेंटिटी हो। घर बैठ के खाना बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं करना, बस मतलब करती हैं हाउस वाइफ में ही नहीं, खैर नहीं करती, बट ये दैट्स एन ईजी वे आउट। मगर यू चोज अदरवाइज, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि कोई भी गलीज आदमी आपको घर बिठा दे अपनी हरकतों की वजह से। सो प्लीज़ इसको रिपोर्ट करें। एंड दूसरी चीज़ ये कि इनको इतना लेवरेज ही ना दें, डोंट आंसर। अगर कोई एक बदतमीज़ी बात करे उसको देर एंड देन ब्लॉक कर दें, ख़त्म बात। अगर वो जैसे आपने इन योर केस ऑफ कोर्स कि अगर वो जगह जगह से आ रहा है, मल्टीपल जगहों से आ रहा है, सो दैट मीन्स कि वो उस क्लोजनेस को, उस प्रॉक्सिमिटी की को ना वो कुछ और, क्योंकि गंवार आदमी है, कभी इतना पाला पड़ा ही नहीं होगा ज़िंदगी में औरतों से, तो वो जब देख रहे हैं यार इतनी करीब है तो बस थोड़ी सी मुझे और, ये इनकी पिकअप लाइन है कि जी छोटा करना है मैंने, या टाइमिंग कम, ये इनकी पिकअप लाइन है। इमेजिन इनकी क्या क्या जहनियत होगी कि लड़कियों को इस तरह इम्प्रेस किया जाता है। किस गटर से निकले होंगे ये, और क्या गटर माहौल इनके घर का होगा कि ये इस तरह लोगों को तंग करते हैं। खैर
अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्लीज़ रिपोर्ट करें, टेक योर हस्बैंड इनटू कॉन्फिडेंस एंड आई विश यू वेल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।